Hi guys, good evening. All set for the exam tomorrow? So yes, it is the first exam of the season. So even if you're not aspiring for a JS job, it is a small exam for you. It is important nevertheless because it is the first exam of the season. It sets the tone for the rest of the season. For those of you who are serious about this, most of you are serious about this, it's an important exam. SBI clerk is always very important. So what is it like? What is the mental makeup like? Feeling confident? डर लग रहा है? Fearful? Afraid? क्या है? I can understand it's a mixed bag, you know, a variety of feelings. But पहले I'll talk about it, how to deal with that. But let's first talk about the strategy for tomorrow. What is the strategy for tomorrow? कल क्या करना है? How many marks? And I was, you know, I just keep looking at all the Facebook posts and everything. So people were like so very confused about कहाँ से exam का form fill करना है, and you know all those things. इस state से उस state से all these things was there. So it's all done and dusted now. And if anybody is still thinking about that and thinking about मैंने यहाँ से भर दिया, I'm from Bihar, filled from UP, what if UP का cut off इस बार ज़्यादा हो गया, all such kind of things were there. No, put it to rest. It's done and dusted. खत्म हो गया. You fill it from wherever you had to fill it. It's over. So if a friend comes tomorrow and tell you मेरा तो वैसे ही चांस नहीं है, you filled it from this particular state, यहाँ तो होगा ही नहीं, तो लैंग्वेज में अटक जाएगा, whatever यार, when it can be anything. Ask him or her to shut up and say the only focus right now of mine is to crack this exam. और कुछ सोच ही नहीं रहा हूँ मैं, कट ऑफ कितना होगा, क्या होगा, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा. No, I'm not thinking of anything. The focus is now just one. What is that? To crack this exam tomorrow. जो बाकी होना था हो चुका. So this is thing number one. Now when it comes to cracking the exam, many of you target a particular number because you know you keep talking amongst yourselves. कितना कट ऑफ जाएगा? What do you think? UP का 75 होगा कि 55 होगा कि 85 होगा? No. All these kind of things. Again, something that should not get, you should not be talking about. Not at all. Nobody knows that. Nobody can predict that. The paper, the difficulty level keeps varying. There are multiple slots, would be multiple slots. Nobody can predict any such thing. So what is the target then? You'll ask me, what is the target? So, I thought 80, I'll get an 80. Fine. You're saying, ज़्यादा भी हो सकता है. I'm not scaring you. I'm just telling you, paper आसान है, ज़्यादा हो जाएगा. Okay. So, what is it like? What number do I chase? So I'll tell you that same thing that I keep saying. If you have to chase a score, chase 100 out of 100. Isn't that the best chase? You chase 100, you fall short by a few marks, that is still okay, isn't it? So chasing a 70, getting a 70 is worse than chasing 100 and getting a 75 or even a 72 or a 71. So what is the reason for you to chase or try to predict and anticipate that cutoff mark, which nobody can, really nobody can. And you just keep running after it. हो सकता है पेपर बहुत मुश्किल निकले. If it's tough, you'll feel 80 is not achievable. You'll feel hassled, nervous हो जाओगे. You'll do worse. So what is the target? The target is to maximize my performance, maximize my marks. Just remember that the strategy is to maximize my performance, maximize my marks. Even if it needs 100, good, wonderful. मुझे और कुछ सोचना ही नहीं है. कोई नंबर हम चेज नहीं कर रहे. What does that mean then? Does that mean that there is no strategy? कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कुछ नहीं है. थोड़ी सी छोटी छोटी बातें हैं, 2-3 मैं आपको बताता हूँ. यू हैव टेकन मॉक टेस्ट, आपने टेस्ट दिए हैं, सभी ने दिए हैं. ऑल ऑफ यू आर सीरियसली प्रिपेयरिंग फॉर इट, यू हैव टेकन द मॉक टेस्ट. इन दोज मॉक टेस्ट यू हैड सर्टेन insights like I generally tend to perform better in this particular part, right? I tend to perform better in simplification as compared to arithmetic, or I've realized that arithmetic questions are a little tougher as compared to simplification questions, or probably as compared to DI. And all this I'm just taking hypothetical data that way. So keep this in mind. What tends to work for you? So I can realize that I generally tend to score quickly and heavily in any such questions, quadratic, simplification, not so quickly in arithmetic. Just keep that at the back of your mind because it's something that works for you. But you do this for all the sections. It can work for English, it can work for puzzles. I can start with puzzles, not start with puzzles. But this is good if you do that. But one thing that you need to keep in mind is just keep it a little flexible. What is the meaning of flexibility? Flexibility means that though you have some kind of strategy in your mind for all 3 tests, these are 3 tests, right? 3 sections. You will keep it flexible. Flexible in the sense that, let's assume for a moment, don't blame me for that, there are no simplification questions in the paper. नहीं आए मान लो, कोई question ही नहीं आया simplification approximation का. And you are somebody who's very good at it. 10 आते हैं तो 2 मिनट में कर देते हो. There are people like that. So what would happen then? Keep it flexible. You just tell yourself then that everybody was expecting it, it is not there. So if the paper has got tougher because of the absence of simplification questions, it has happened for everybody.
everybody would be stumped or would be expecting and a little taken aback, caught off guard, right? सबके साथ वही हुआ है. तो इसका मतलब क्या है, अब मुझे क्या करना है, आई हैव टू जस्ट होल्ड माई नर्व, बिकॉज वो नहीं है तो कुछ और होगा पेपर में करेंगे. ऐसा थोड़ा ना दैट देयर विल बी नथिंग टू इन द पेपर, सब कुछ मुश्किल होगा. Assuming that you find arithmetic tough, I'm just giving example, just trying to make you understand how it works. You'll find something else. Many people would be taken aback, would not perform to their potential, right? You have to make use of that. Otherwise, जो आपकी strategy है, जो आपके दिमाग में broad strategies, this question type works for me. So, for example, you might say blood relation direction. It always works for me. I can get them very quickly. Those 5 questions, I mean, if they are there, 2-3 minutes, just that. Good. Do them first, like that. This kind of puzzle I generally do quickly. But what is the key here? Keep it fluid, keep it flexible. चेंज कर सकते हो. सो डोंट गो विद नोशंस लाइक सर्कुलर मुझसे कभी नहीं बनेगा, आई कैन नॉट डू सर्कुलर पजल्स. देयर माइट बी अ वेरी सिंपल वन इन सर्कुलर, राइट? सो जस्ट कीप इट लाइक दिस फॉर ऑल द सेक्शंस. इंग्लिश में शुड नो व्हाट वर्क्स फॉर मी, आरसी फर्स्ट और द अदर क्वेश्चंस फर्स्ट, व्हाटएवर. कीप दोज गुड थिंग्स इन माइंड. आपने जो मॉक्स दिए हैं, जस्ट ट्राई एंड रिकॉल अ फ्यू ऑफ देम, राइट? द वंस द इन विच यू डिड वेल, इन विच यू आर सैटिस्फाइड विद योर परफॉर्मेंस, जिनको आपको लगा बढ़िया लगा करके, हाँ आज मैंने अच्छा करा, स्कोर भी बढ़िया आया. सो रिमेंबर देम, रिकॉल देम. What will happen is that one, you'll feel good about yourself कि मैं कर सकता हूँ. This is one. 2 would be that you will remember those things that you did in that particular test. मैंने उसमें क्या किया था, मैं probably अटका नहीं था कहीं पर, ठीक है? I never got stuck anywhere. This is what generally hampers my performance. मैं अटक जाता हूँ कहीं पर, कुछ क्वेश्चन को ईगो पे ले लेता हूँ. Many good students, many well prepared students tend to spoil, especially their prelims, because they get stuck. So this is another thing that I want to tell you. One thing for tomorrow that you need to remember, especially for prelims, you do not have to get stuck anywhere. It is 60 minutes and 100 marks, 100 questions. So that's like roughly half a minute per question, 30-40 seconds per question. Let's put it like that. 30-40 seconds, you do not have time to think. So you say work very hard on, let's talk about arithmetic. You started thinking, you do well, you're a problem solver. The same goes in puzzles and all. You can think, you can crack puzzles, but there you do not have time to think. Use all that in the main exam. Here, just look at the question, it clicks, you have to do it. If it does not click, you have to keep moving. So what is the key for you? 2 words, keep moving. Fine. Just play it in your mind a few times, 10 times, 50 times, whatever. Keep moving. The moment you get stuck in the paper, you cannot solve something, it feels like nahi ho raha hai, kharab ja raha hai. Just keep moving. Just, I'll give you an example. You start the paper. Let's say the first question is an arithmetic question. You get stuck. यार ये तो मैंने इतना करा था, I did so much, but I still cannot get it. 30-40 seconds, नहीं समझ में आ रहा है. You will, because you think it has to be a good start, you'll keep doing it. और आपके दिमाग में प्ले करना स्टार्ट करिए. Start playing already on your mind. You don't get it in 2 minutes. Just imagine the kind of start that you'd have. Wouldn't it be disastrous? So what do you have to do? 30-40 seconds, you don't get it, कोई बात नहीं. I'll get something else to do in the paper. Get the second question, that's easier. You got it. You got some confidence. Find the next one, that's again doable. The fourth one, not doable, leave it again. Fifth one, doable. You get some confidence. Okay, I've already started scoring. You need that confidence going into it. So what is the mantra? It's very important, very important. Keep moving. Just remember these 2 words, keep moving. You get stuck in the paper anywhere, any section, anywhere. 20 minutes is बहुत छोटा सा time, it's very little time. You get stuck anywhere, the paper gets ruined. मोस्ट ऑफ द वेल प्रिपेयर्ड स्टूडेंट्स, वेल प्रिपेयर्ड सीरियस स्टूडेंट्स, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जिन्होंने तैयारी ठीक से नहीं किया, वो तो फिर अपने तरीके से करेंगे, बट जिन्होंने बहुत बढ़िया तैयारी की है एंड हु आर वेल प्रिपेयर्ड एंड हु मिस आउट इन द प्रीलिम्स, प्राइमरीली मिस आउट बिकॉज ऑफ गेटिंग स्टक समवेयर. आप पूछ लो, अपने एक्सपीरियंस से देख लो. आई एम सेइंग मोस्टली, नॉट ऑलवेज, दे कैन बी अदर थिंग्स. हमने थोड़ा कम स्कोर करा, पेपर आसान था, व्हाटएवर, बट दिस इज वन मेजर रीजन. डोंट लेट इट हैपन टू यू. अगर आप बोलते हो मैंने रुका नहीं, मैंने सब कुछ करता रहा, I missed it by a couple of marks, that's okay. That's not okay, but yeah, ठीक है, I'll have to accept that. But I ruined my paper because I got stuck in a puzzle, not okay. What's the time limit after which you should leave a question? Single question, 20-30 seconds, 40 seconds, that is the max. Puzzle and all, if after a minute and a half, 2 minutes, you don't seem to be anywhere near to cracking it, it's time to move on. I mean, you have solved enough of these questions to know when you have to leave it. Just do not take it in an ego. Just do not feel that you wasted that 1 minute or 1.5 minutes. That starts playing on mind. I've been an exam taker, so I know that. The moment you have to leave something, एकदम ना ऐसा लगता है जैसे जल जाता है अंदर से कुछ, अरे यार इसमें टाइम खराब किया एंड स्टिल आई कैन नॉट डू इट. मन नहीं करता आगे, निकल भी जाते हो आगे. यू लीव दैट, मूव फॉरवर्ड एंड स्टिल कीप्स प्लेइंग ऑन योर माइंड. नहीं छोड़ा है उसको, लेट मी गो बैक टू दैट क्वेश्चन अगेन. हो जाएगा, नहीं करना है. It'll keep calling you. You'll have to keep moving. 2 words, keep moving. It's the key.
एक और इम्पॉर्टेंट बात आपसे करनी थी, क्योंकि बहुत सारे लोग ये पूछते रहते हैं, एग्जाम वुड बी इन मल्टीपल स्लॉट्स, सो एक्सेप्ट फॉर द पीपल हु टेक द एग्जाम इन द फर्स्ट स्लॉट टुमारो, रेस्ट एवरीबडी वुड हैव अ चांस टू टेक सम फीडबैक फ्रॉम अदर्स. रिव्यूज़ वगैरह आते हैं यूट्यूब पे, वेबसाइट्स पे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, बहुत कुछ चीज़ें आती हैं. तो आप मतलब आपका क्वेश्चन ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, व्हाट डू आई डू. लुक, इफ़ यू कैन हैंडल इट इन द सेंस दैट यू कैन टेक इट इन योर स्ट्राइड. इफ़ समबडी टेल्स यू बहुत मुश्किल पेपर है और आप बिना घबराए हैंडल कर लोगे, कोई बात नहीं, मुझे तो आता है सब कुछ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, होने तो मुश्किल, दैट इज़ ओके. बट इफ़ यू आर scared of it, if you think you can develop cold feet by listening to others, because many people are like that, and avoid. One thing that I advise for everybody is that you tend to get some kind of a PDF of memory based questions, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मिल जाता है शाम तक या 2-4 घंटे बाद, that you can use, that you can solve. बस उतना ही करना है, कहीं से भी मिल जाए, कैसे भी मिल जाए, बहुत टाइम मत खराब करना. इफ इट्स अवेलेबल, somebody compiles it, you will find it. जस्ट डू दोज क्वेश्चंस. हो सकता है वो होए ना आए ना, बहुत लोग फर्जी भी बना देते हैं, बट दैट इज द ओनली थिंग दैट शुड डू. इफ दे लुक टू टफ, डोंट बिलीव कि पेपर टफ होने वाला है, हो सकता है वो गलत हो, बट दैट इज द ओनली थिंग अमंग दिस होल साइकिल ऑफ रिव्यू एंड फीडबैक एंड वॉट नॉट दैट शुड डेफिनेटली डू. अगर आप फन के लिए देखना चाहते हो, ओके लेट्स लुक एट क्या मजा आ रहा है, देखते हैं कौन घबरा रहा है क्या हो रहा है, दैट इज फाइन. इफ यू कैनॉट हैंडल इट, अवॉइड इट. लुक, देयर इज अ रीजन. अगर कुछ साइंटिफिक प्रूफ होता है इस चीज़ का कि कुछ फ़ायदा करेगा, तो मैं बोलता कर लो यार, हैंडल इट. बट नहीं करेगा, 2 reasons. 1, 16 slots, and I'm assuming 4 into 4, 16, or whatever number of slots, would be all different. Even the composition can be different. Their difficulty levels can be different. So my slot was tough, doesn't mean yours would be tough. If I got, a particular kind of a puzzle, doesn't mean you'll get it. No, I might give you a feedback like, this particular puzzle was tough, so the floor-based puzzle was very tough. I might give you a feedback like that. You might feel, इसको तो मैं छोड़ दूंगा, नहीं करूँगा. हो सकता है आपके में आसान आ जाए, नहीं. और probably I just messed it up. It was an easy question. आपको contradictions नहीं दिखते फीडबैक में. Somebody would say अरे बहुत मुश्किल था, syllogism बहुत मुश्किल आया था. Somebody else would say it was so easy. You find all kind of contradictions there, all stupid things. कितनी वाहियात चीज़ों की बात हो रही होती है. नया टाइप का क्वेश्चन आ गया, बहुत नया आ गया, सिलोजिज्म में DI डाल दी इस बार, है ना. चीज़ें नहीं सुनते. पजल में पता नहीं क्या क्या था, 5-6 वेरिएबल की पजल है, प्रीलिम्स में डाल दी, पता नहीं कैसे लोग हैं, पता नहीं SBI क्या है. नो, अगर है तो भी मैं हैंडल कर लूँगा, और मेरे को सुनना ही नहीं है अपने स्लॉट से पहले ना. ये सब मेरे को सुनना नहीं है, मेरा दिमाग ख़राब करता है. आई गेट हैसल्ड, आई फील हैम्पर्ड, आई फील स्लोड डाउन, आई फील बॉग डाउन, आई फील एज इफ आई एम नॉट एट दैट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस दैट आई हैव टू बी, दैट आई वॉन्टेड टू बी. इसके लिए अवॉइड करना. टाइम तो ख़राब होता ही होता है, ये दूसरी चीज़ है. सबके स्लॉट अलग अलग होते हैं, सबका परसेप्शन अलग अलग होता है, नहीं पता चलेगा आपके में क्या आने वाला है. A question type that might be tough for me might be very easy for you, but you will tend to leave it because I told you that you have to leave that particular question type, and that was very tough. I have seen in cases when somebody said sir syllogism बड़े मुश्किल थे, somebody else said syllogism थे ही नहीं उस slot में. किसको विश्वास करोगे बताओ. So if somebody very close, trust कि आपको लगता है कि ये मेरे को ठीक feedback देगा and the guy is good, who can understand the paper, वहाँ उससे थोड़ा बहुत बात कर सकते हो. ये random stuff surfing मत करना, it is just a waste of time, बिल्कुल waste है. Questions मिल जाएंगे तो कर लेना, यही है. अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात पे आते हैं, डर. लगता ही है बड़ा एग्जाम है, यू आर अ लिटिल रस्टी एट द मोमेंट प्रॉबेबली. मैनी ऑफ यू हैवंट टेकन एग्जाम फॉर सम टाइम. सीजन खत्म हो टाइम हो गया, इट्स द फर्स्ट वन, इट्स इंपॉर्टेंट दैट वे, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. थोड़ा सा डर लग रहा है, देखो यार थोड़ी बहुत एंग्जाइटी इज नॉर्मल व्हेन इफ यू आर सीरियस अबाउट समथिंग, इफ यू हैव प्रिपेयर्ड हार्ड फॉर इट, इफ दिस जॉब मैटर्स टू यू, इफ यू आर इन अ डेस्परेट सिचुएशन, this is okay. This anxiety is fine. This will give you that nervous energy that makes you perform better. But अगर आप कोई वैसे वाले हो जिसके हाथ कांप रहे हैं, all those things, that is bad. And calm yourself down and ask yourself, what would happen if God forbid I don't clear it? क्या हो जाएगा? सोचो, अपने आप से पूछो एक बार, क्या हो जाएगा? रियलाइज कि नहीं यार ऐसा तो कुछ नहीं होगा. There are so many other exams about to happen. So what would happen? नहीं होगा, कोई नहीं, कोई दूसरा एग्जाम हो जाएगा. Isn't it? Should it not be like that? And it gives you that much desired confidence. When front foot पे खेलना है हमें, तो it is like कि let us assume for a moment that विराट कोहली asks KL Rahul to open in the first test match against England. चलो थोड़ी सी क्रिकेट की बात करते हैं. So what would he tell him? ऐसी एग्जाम्पल समझ लो, मेरे कोई अंदर की जानकारी नहीं है. लेट्स से ऐसा हो जाता है, क्या बोलेगा? कॉन्फिडेंटली जाके खेल, 5 टेस्ट मैच खेलेगा, या कम से कम 3 टेस्ट मैच ज़रूर खेलेगा. ऐसा नहीं बोलेगा ना दैट आज इसमें रन नहीं बनाए तो अगले में बाहर, मुश्किल हो जाएगा ना. तो आपके लिए वही है, पहला टेस्ट मैच है,
पहला टेस्ट मैच है यार, मेरे पास चांसेस हैं अभी, सो आई कैन प्ले माई नेचुरल गेम, आई कैन कम ऑन द फ्रंट फुट एंड ट्राई एंड हिट द बॉल ओवर हिज और हर हेड फॉर अ 6। मैं ट्राई कर सकता हूँ, क्योंकि अगर फेल भी हो गया, नहीं फेल होऊंगा, मेरे को कॉन्फिडेंस अपनी एबिलिटी में, फेल भी हो गया तो कोई बात नहीं है, हैव द चांसेस। सो इट्स सिमिलर सिचुएशन, सो मेनी अदर्स टू कम, so many other test matches to come, SBI PO, IBPS PO, IBS clerk, RRB PO, so much to come। किस बात का डर है? कुछ नहीं है। तो फिर आप बोलोगे सर कंपटीशन वगैरह, नो पीपल से इट लाइक दैट, वो इतना अच्छा कर रहा है, वो इतना ख़राब कर रहा है, वो उसने इतना कर लिया। इवन आई हैवंट कंप्लीट माई सिलेबस, मैंने 2 चैप्टर छोड़ रखे हैं। देखो जो हो गया, अब पढ़ने की बात नहीं करनी है, पढ़ाई इज़ डन। इफ इट्स एग्जाम टुमारो, पढ़ाई इज़ डन, यू हैव स्टडीड व्हाट यू हैड टू स्टडी, यू जस्ट हैव टू वर्क ऑन योर मेंटल मेकअप नाउ। वो पॉजिटिव होना चाहिए, एकदम पॉजिटिव होना चाहिए, उसमें कोई नेगेटिव नहीं होनी है कि आप सोच रहे हैं दैट somebody else did so much, he gets a good score in the exam, in the mock tests. I've never got a good score. Doesn't matter. I'll give you an analogy of cricket again. Somebody has a batting average of 55, fine. Somebody else has got a batting average of 25. Do you know that this 55 guy would score 100 tomorrow and this 25 guy will not? No, it's a different match. I understand the probability of the guy with 55 average scoring 100 tomorrow might be more, fine. But is that a given? No, it's a new day. So if that 25 guy is hell bent on proving himself कि नहीं यार कल तो ठोक देना है, हो सकता है ना, तो आप वो भी हो सकते हो ना यार, हो सकता है कल मेरा पहला ज़बरदस्त बड़ा एग्जाम होने वाला है, आई एम दैट बिग मैच प्लेयर, नहीं हो सकता क्या? बट यार उसके लिए यू हैव टू टेल योर सेल्फ फर्स्ट दैट आई एम मेड फॉर इट, दैट आई कैन डू इट, दैट आई एम गुड इनफ फॉर इट. If you just keep going by how you performed in the nets, practice in the nets, it won't work. You did not do well in the nets, you still got a chance to play the match. What would you do? What would you do? Try and make the most of the opportunity that you have. You have this opportunity. Make the most of it. जहाँ तक competition की बात है यार, competition simple है देखो. I'll use some harsh words here, समझाने के लिए आपको. Competition का क्या है? कौन एग्जाम दे रहा है? IITians एग्जाम दे रहा है कोई साथ में? I'm talking about competitors. People who cracked CAT last year, are they taking this exam? No. Who cracked SBI PO last year, are they taking this exam? People who cracked SBI clerk last year, are they taking the, even they are not taking the exam. कौन एग्जाम दे रहा है? देखो यार, या तो बच्चे दे रहे हैं, बच्चे कौन? फ्रेशर बच्चे, या तो वो एग्जाम दे रहे हैं, आप भी उनमें से एक हो सकते हो जो मेरे को सुन रहे हो, या कौन एग्जाम दे रहा है? जो बेचारा पिछली बार फेल हो गया था, इसकी हालत तो मेरी जैसी है ना. इज ही नॉट लाइक दैट, लाइक मी, आइदर अ फ्रेशर और समबडी हु डिड नॉट डू वेल लास्ट ईयर. तो ये मेरे से बेहतर कहाँ है? हाउ इज़ ही बेटर देन मी? आई वर्कड हार्ड, ही माइट हैव वर्कड हार्ड, दैट्स ओके. ही फेल्ड लास्ट ईयर, आई फेल्ड लास्ट ईयर, व्हाट्स द पॉइंट इन फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड अबाउट उसने इतना किया. नहीं यार, मेरा तो बराबर चांस है, इज़न्ट इट? बराबर चांस नहीं है, सब कुछ तो बराबर है. हैड इट बीन 100 IITians taking the exam, 100 SBI POs taking the exam, you would have said अरे इट इज़ सो टफ नाउ. बट ऐसा तो कुछ हो ही नहीं रहा है. एवरीबडी इज़ लाइक यू, सो टेल योर सेल्फ एवरीबडी इज़ लाइक मी. इफ़ यू हैव वर्कड, एवरीबडी इज़ लाइक मी. सब पिछली बार या तो फेल हुए थे या फ्रेशर हैं, पहली बार दे रहे हैं. तो जो मेरी हालत है वही उन्हीं की हालत है. इट्स अ लेवल प्लेइंग फील्ड, कोई ऊपर नीचे नहीं है, सब बराबर हैं. एंड नाउ हु विल विन? द वन हु परफॉर्म्स टुमारो विल विन. यही है ना. मॉक टेस्ट के स्कोर मैटर करेंगे क्या? नहीं करेंगे. कोई बहुत अच्छा लेकर आता, समबडी इज डूइंग रियली वेल, रूइंस टुमारो, वुड दे मैटर? नो. तो कल तो एक फ्रेश चीज़ है, बिल्कुल एकदम. इट्स अ फ्रेश थिंग फॉर यू. कुछ मैटर नहीं करता. इट्स अ एन आइसोलेटेड इवेंट दैट वे, बिल्कुल अलग है. कल अगर अब तक अच्छा नहीं भी हुआ है तो मैं कर सकता हूँ. बोलो अपने आप को पहले कि मैं कर सकता हूँ, आई एम केपेबल. आई माइट नॉट हैव डन द कंप्लीट सिलेबस, टाइम नहीं था उतना, या वट एवर रीजन, बट आई स्टिल, सिंस आई एम टेकिंग दिस एग्जाम, आई एम टेक इट सीरियसली एंड आई एम टेकिंग इट विद द बिलीफ दैट आई कैन डू इट, कि मैं कर पाऊँगा, कि मैं कर लूँगा, कि मैं करने के केपेबल हूँ, दैट आई एम केपेबल ऑफ डूइंग दैट. एंड देन वट एवर यू डिलीवर, यू फेल और यू पास और वट एवर, वुड बी probably close to your best performance, your optimal performance. You go there on the back foot, डरते हुए, डिफेंसिव होते हुए, तो यार वैसे भी कुछ नहीं होना, बहुत मुश्किल हो जाएगा. तो जब नहीं तैयारी है तो थोड़ा सा बिंदास खेल के देखते हैं, हो सकता है कल क्लिक हो जाए, हो सकता है अगले 5 टेस्ट मैच खेलने का मौका मिल जाए, बढ़िया इनिंग्स, वैसे भी तलवार लटकी हुई है. तो वॉट एवर, नो, टॉक टू योर सेल्फ एंड टेल योर सेल्फ वॉट एवर वर्क्स फॉर यू. इट कैन बी डिफरेंट थिंग्स फॉर डिफरेंट पीपल. टॉक टू योर सेल्फ एंड बताओ अपने आप को कि मुझे करना ही है. जो भी थॉट आपको कंफर्ट देती है वो अपने आप को समझाओ, बताओ, एंड जस्ट मेक श्योर दैट यू मेक द मोस्ट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी. कल अपॉर्चुनिटी है ना, एग्जाम आ रहा है, कोविड की वजह से सब कुछ बंद था. नाउ इट्स एन अपॉर्चुनिटी अगैन, यू नीड टू मेक द मोस्ट ऑफ इट. डू नॉट लेट दिस फेयर कॉन्कर यू. अब क्या करना है? मस्त खाओ पियो, सो जाओ, ईट लाइट, ईट हेल्दी,
फाइन, स्लीप वेल, एक बार एडमिट कार्ड वगैरह देख लेना अपना, उसमें शायद कुछ प्रोसीजर में इस बार चेंज था, पिक्चर्स वगैरह का, जस्ट रीड इट केयरफुली, आई मीन दैट शुड बी अ प्रैक्टिस, कौन सा पेन लेकर जाना है, पेंसिल, ये वो, एडमिट कार्ड, फोटो, लाइसेंस, वॉट एवर, जस्ट मेक श्योर दैट यू रीड इट वंस 5 मिनट्स, कल सुबह प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, रीच देयर ऑन टाइम, एकदम मस्त रहो, हल्की फुल्की कोई मूवी देख लो, म्यूजिक सुन लो, डू एनी सच थिंग दैट कम्फर्ट्स यू, दैट मेक्स यू फील गुड, फाइन, फील लाइट, कुछ भी ऐसा मत करना जिससे प्रॉब्लम हो, किसी लड़ाई झगड़ा नहीं करना, कुछ नहीं करना, किसी और टेंशन वाली चीज़ में नहीं पढ़ना, कोई भारी स्टफ नहीं पढ़ना, एनीथिंग दैट कैन मेक यू फील टेंस्ड और नॉट रिलैक्स्ड और नॉट एट ईज और नॉट कंफर्टेबल शुड अवॉइड इट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ रूल दैट शुड फॉलो फॉर ऑल द एग्जाम्स। ऐसे ही सोचो, इसी तरीके से रहो, कंपटीशन के बारे में मान लो यार सब मेरे जैसे ही हैं, इडियट्स हैं, कुछ नहीं है यार, मैं अगर ये कर सकता हूँ मैं भी कर सकता हूँ यार, मेरा पूरा चांस है, अच्छा लगेगा, एंड ये अच्छी वाली फीलिंग टेंड्स टू मेक यू स्कोर मोर, मच मोर इन द एग्जाम। क्या होगा मैं देख लूँगा बाद में, मैं अभी इस चीज़ को बॉदर नहीं कर रहा हूँ, अभी मेरे दिमाग में सिर्फ एक चीज़ है, कल का जो एग्ज़ाम है ना उसमें अपना बेस्ट देना है, ये सोचते हुए, ये भूल जाते हुए कि मैंने कहाँ से फॉर्म भरा था, क्या भरा था, कंपटीशन कैसा है, मेरा दोस्त क्या कह रहे हैं, मेरे सर क्या कह रहे हैं, कितना कट ऑफ होगा, कितना नहीं होगा, कुछ नहीं सोचना मुझे सिर्फ एक ही चीज़ सोचनी है, जितना भी मुझे आता है, वॉट एवर आई नो आई विल परफॉर्म टू द बेस्ट ऑफ माई पोटेंशियल टुमारो, बस दैट्स इट। 100 करूँगा बहुत अच्छी बात है, 60 करूँगा तो भी कोई बात नहीं है, कट ऑफ हो सकता है उसके नीचे रहे, नहीं रहेगी तो कोई बात नहीं, और बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं, ये वाली आपकी ना फीलिंग होनी चाहिए, डर को निकाल दो एकदम दिमाग से, कुछ भी और मत सोचो, एंड सब कुछ ठीक हो जाएगा। 2-3 जो बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उनका ध्यान रखिए, कीप मूविंग, डो नॉट गेट स्टक, कीप मूविंग इन द एग्जाम, डोंट गेट स्टक, गेटिंग स्टक इन प्रीलिम्स मीन्स यू माइट बी गॉन, पेपर थोड़ा बहुत चेंज होता है, टेंशन मत लेना, सबके लिए चेंज हुआ है, इंपॉर्टेंट है, नॉर्मलाइजेशन होता है एंड इट्स इफेक्टिव, ऐसा मत सोचना बेकार है क्योंकि आपने कहीं ऐसा पढ़ लिया था, कुछ नहीं है, हो जाएगा। अभी सिर्फ एक ही बात सोचनी है कि जो भी पेपर आएगा एंड जो भी मेरी कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से वॉट एवर बेस्ट आई कैन डू इन द एग्जाम टुमारो, आई विल जस्ट डू इट विदाउट थिंकिंग टू मच अबाउट कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, कैसे नहीं होने वाला है, कुछ नहीं सोचूंगा, फालतू बात कुछ नहीं सोचूंगा, सब मेरे जैसे ही हैं, मैं कर लूँगा, निकाल लूँगा एग्जाम को, बस यही सोच के कल जाना है, बाद में जो सिलेबस से देख लेंगे। वो जो कीप मूविंग है ना उसमें अपना ईगो साइड में रख देना, आई एम गुड एट DI, कैसे नहीं होगा, फाइन, आई एम गुड एट क्वाड्रेटिक, कैसे नहीं चमक रहा, वाई कैन नॉट ब्रेक दिस नंबर इनटू फैक्टर्स, वो सब नहीं है, बाद में करना लड़ाई, घर जाके अपना ईगो घर पे छोड़ के जाना, लेके जाते हो तो प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, तो वो सब चक्कर नहीं डालना है। डर की जहाँ तक बात है यार, बिल्कुल नहीं डरना है, एकदम नहीं डरना है, एकदम मस्त रहना है, बिंदास रहना है, थोड़ी सी कल बहादुरी की जरूरत है, अ लिटिल ब्रेवरी, दैट्स इंपॉर्टेंट इन एनी एग्जाम, थोड़ी सी बहादुरी दिखाओ एंड थिंग्स वुड वर्क फॉर यू, कल जाओ ना तो एकदम बिंदास जाना वहाँ पर, कि अब नेट प्रैक्टिस हो चुकी है, अब तो बस सहवाग मोड में आ गए ना, छक्के मारने मैंने कोशिश करनी चाहिए, आउट हो गए कोई बात नहीं, फिर से मौका मिलेगा छक्के मारने का, कई सारे मैच बाकी हैं, बट डिफेंसिव नहीं रहना है मेरे को ना, कल अब हो गई तैयारी, जो मतलब पढ़ाई करनी थी, ये करना था, अब हो गया, अब तो फील्ड पे जाने का टाइम आ गया सीधा, अब बस मैं तैयार हूँ एकदम ना फोड़ देने के लिए उसको, थोड़ी सी ये बहादुरी ना, मतलब दिस ब्रेवनेस, दिस ब्रेवरी, दिस हेल्प्स। I'll tell you something, you know, remember that always. A brave man isn't the one who isn't afraid of anything. वो आदमी बहादुर नहीं होता जो किसी से नहीं डरता. A brave man is the one who conquers his fear. वो बहादुर होता है, वो आदमी बहादुर होता है जो अपने डर से जीत जाता है, जो अपने fears से जीत जाता है. Let's do it, guys. Let's try and conquer our fears this time. Let's try and conquer this exam. We not do it. Let's do it.